آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا استقبال۔ ناظرین، میں ہوں ناصر بن خالد۔ خبروں کے سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے آئیے ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ AMC انتظامیہ کی جانب سے خریدے گئے 29 میٹر اونچے ایریل پلیٹ فارم کے علاوہ 7 مین روڈ سوائپنگ مشین کی رابطہ وزیر سنجے سرساٹ اور اتل ساوے کے ہاتھوں کی گئی پوجا۔ مذکورہ تقریب میں تاخیر سے پہنچنے پر اتل ساوے نے سنجے سرساٹ پر کی طنز بھری تنقید۔ تاریخی دولت آباد قلعے کے اطراف اور احاطے میں آگ لگنے کے واقعات میں اضافے سے سابق مرکزی وزیر مملکت و راجیہ سبھا رکن ڈاکٹر بھاگوت کراڑ ہوئے سخت ناراض۔ ان واقعات کو ٹالنے ٹھوس کارروائی کی متعلقہ افسران کو جائزہ میٹنگ میں دی ہدایات۔ ڈی پی روڈ میں حائل مکانات پر میونسپل انتظامیہ کی جانب سے چلائے جاتے ہیں بلڈوزرز۔ مذکورہ متاثرین کی باضابط کاری کے لیے وزیر اعظم گھرکل اسکیم کے تحت تعمیر کیے جا رہے مکانات میں سے 5% کوٹہ متاثرین کے لیے مختص کرنے کا انتظامیہ نے کیا فیصلہ۔ ہرسول کے گھٹ نمبر 216 اور 217 کے متاثرین کو 18 ماہ تک مکان کے لیے دیے جائیں گے 2000 روپے ماہانہ مالی امداد، کہا میونسپل کمشنر جی شری کانت نے۔ اور برڈس جل سنجیونی پروگرام کے تحت پرندوں کے لیے دانہ پانی فراہمی سے متعلق سینٹرل پرائمری اسکول نمبر 1 کراڑ پورے میں ورکشاپ منعقد۔ لائف کیئر اینیمل ویلفیئر ایسوسی ایشن کے ذمہ داران اور اسکول کی صدر مدرس نے طلبہ کی رہنمائی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تکنیکی اعتبار سے میونسپل کارپوریشن کو مستحکم بنانے کی غرض سے جدید آلات سے آراستہ نئی گاڑیاں خریدی گئی، جن کی رابطہ وزیر سنجے سرساٹ اور ریاستی وزیر اتل ساوے کے ہاتھوں پوجا کروائی گئی۔ واضح ہے کہ تکنیکی اعتبار سے میونسپل کارپوریشن کے میکینیکل سیکشن کو مستحکم بنانے کی غرض سے میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شری کانت کی ہدایت پر حکومت کی جانب سے فراہم کردہ فنڈ سے جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ نئی مشینیں خریدی جا رہی ہیں۔ شہر کی سڑکوں کے کنارے جمع شدہ دھول اور مٹی کو صاف کرنے کی غرض سے اب تک میونسپل انتظامیہ کے پاس 6 ٹرک ماؤنٹڈ سویپنگ مشینز اور 3 منی روڈ سویپنگ مشینز موجود تھیں، جن کے ذریعے روزانہ 200 کلومیٹر تک راستوں پر جھاڑو لگائی جاتی ہے۔ لیکن شہریان کو بہتر سہولتیں فراہم کروانے کی غرض سے میونسپل حدود کو 10 زونل دفاتر میں تقسیم کیا گیا ہے، لہٰذا ہر زون دفتر کو کم از کم 1 منی روڈ سویپنگ مشین فراہم کروانے کے لیے مزید 7 مشینیں کم تھیں، لہٰذا متعلقہ شعبے نے 7 نئی منی روڈ سویپنگ مشینز خریدنے کے لیے GEM پورٹل کے ذریعے اشتہار دے کر ٹینڈرز کال کیے اور لدھیانہ پنجاب کی ہر انٹرنیشنل کمپنی کا ٹینڈر منظور کیا اور فی مشین 33,90,000 کے حساب سے 7 منی روڈ سویپنگ مشینز خریدیں، جن پر 2,37,30,000 روپے خرچ ہوئے ہیں۔ ان مشینوں کی بدولت شہر کے اندرونی راستوں پر یومیہ 100 کلومیٹر تک صفائی ممکن ہے، یہ اطلاع میکینیکل سیکشن کے ایگزیکٹو انجینئر امول کلکرنی نے دی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ریاستی حکومت نے شہر میں 22 منزلہ عمارتوں کی تعمیر کو منظوری دی ہے، جس کے لیے 70 میٹر اونچا ہائیڈرولک پلیٹ فارم ضروری ہے، جس کی خریدی کے لیے تیاریاں شروع کی جا چکی ہیں، مگر فی الحال 29 میٹر اونچائی والا ایریل پلیٹ فارم خریدا گیا ہے، جس پر 1,34,12,376 روپے خرچ آیا ہے، جس سے 10 منزلہ عمارتوں تک آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے۔ ان نئی خریدی گئی مشینوں کی پوجا ریاستی وزراء سنجے سرساٹ اور اتل ساوے کے ہاتھوں کی گئی۔ سرساٹ صاحب، اپنا کھیرے جیسا حال ہونے مت دو، اس طرح کا تنقید بھرا مشورہ ریاستی وزیر اتل ساوے نے فون پر رابطہ وزیر کو دیا۔ ناظرین، گزشتہ روز میونسپل کارپوریشن دفتر میں مختلف ترقیاتی کاموں کے افتتاح اور سنگ بنیاد کے لیے ایک تقریب منعقد کی گئی تھی۔ تقریب کا وقت صبح 11 بجے مقرر تھا، مگر اس پروگرام کے چیف گیسٹ ضلع کے رابطہ وزیر و ریاستی وزیر برائے سماجی انصاف سنجے سرساٹ دوپہر 1 بجے تک بھی وہاں نہیں پہنچے اور ان کے وہاں نہ آنے کے سبب دیگر مہمانوں کو بھی انتظار کرنا پڑا، لہذا ریاستی وزیر اتل ساوے نے میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شری کانت اور اپنی پارٹی کے دیگر عہدیداران و ورکرز کی موجودگی میں رابطہ وزیر کو فون لگا دیا اور پھر انہوں نے ریاستی وزیر سنجے سرساٹ کو کیا تنقید بھرا مشورہ دیا، سنتے ہیں خود انہی کی زبانی۔ گزشتہ 8 اپریل کو دولت آباد قلعے کے احاطے میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا تھا۔ گزشتہ روز
साबिका मरकजी वजीर ममलकत व राज्यसभा रुकन डॉक्टर भागवत कराड़ ने दौलताबाद किले में एक जायज़ा मीटिंग तलब की और यहाँ बार बार आग लगने के वाक़यात की रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाने की आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अफसरान को हिदायत दी। नाजरीन, तारीखी दौलताबाद किले के अतराफ़ और अहाते में आग लगने के वाक़यात बार बार पेश आने लगे हैं। गुज़िश्ता 8 अप्रैल को भी इसी तरह की एक वारदात यहाँ पेश आई और किले के अहाते में लगी आग में यहाँ मौजूद घास फूस 80% जल गई। यही नहीं, बारादरी में भी आग लग गई थी, जिसमें यहाँ मौजूद सभी वनस्पति के पौधे जलकर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। इसके अलावा दीगर जंगली जानवर और परिंदों को भी नुकसान पहुँचा है। लिहाजा यहाँ बार बार आग लगने की वजूहात का जायज़ा लेने और उन पर काबू पाने की गर्ज से साबिक़ मरकज़ी वज़ीर ममलिकत व राज्यसभा रुकन डॉक्टर भागवत कराड़ ने मुतल्लिक़ा सभी अफसरान की एक अहम मीटिंग गुज़िश्ता रोज़ तलब की। इस मीटिंग में महकमे आसार कदीमा के सुपरिंटेंडेंट शिव कुमार भगत, असिस्टेंट इंजीनियर हेमंत कुमार हुक्रे, असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर संजय रोहतकर और दीगर मुतल्लिक़ा अफसरान शरीक हुए। डॉक्टर कराड़ ने इन अफसरान से आग लगने की वजूहात से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की। उसके बाद ये हिदायत दी कि तारीख़ी दौलताबाद किले की सैर को आने वाले सयाहों की दाखिले से कबल तलाशी ली जाए और किले के अहाते में बीड़ी, सिगरेट, लाइटर, काड़ी की डब्बी या आग जलने में मदद देने वाली अशिया ले जाने की इजाज़त हरगिज़ न दी जाए। साथ ही फायर डिपार्टमेंट, महकमा आर्कियोलॉजी और महकमा जंगलात के अफसरान की मुश्तरका मीटिंग 12 मई को बुलाई जाए और इस ज़िम्मन में एक तफसीली खाका तैयार करके 13 मई को उन्हें पेश किया जाए। इन कामों के लिए वो मरकज़ी व रियासती हुकूमत की जानिब से दरकार फंड मुहैया करवाएंगे। इस मीटिंग में संजय खम्बायत, एडवोकेट अशोक मुड़े, सरपंच शबाना शेख, नायब सरपंच जावेद शेख, साबिक़ सरपंच संजय कांजूने, रामदास एंगड़े, पवन गायकवाड़, संदीप शेड़के, तलाठी सूरज गिरी, ग्राम पंचायत रुकन सैयद मतीन और दीगर बड़ी तादाद में शरीक थे। जयंती असल्यामुळे काल दिवसभर मी पाहिलं, पण आग लागली हे मला कालच कळलं, म्हणून मी ठरवलंच होतं यायचं. मी आज इथं आलो आणि ही आग 3-4 वेळेस लागली अशी माझ्या माहितीप्रमाणे आहे. ही आग परत परत लागली नाही पाहिजे. त्याच्यामध्ये एक तर ते किल्ला काळा होऊन जाईल, दुसरं त्याच्यामध्ये वन प्राणी जे आहेत, वन प्राणी समजा मोर असेल, ससा असेल, जे काय असतील प्राणी, त्यांना त्यांच्या जीवाची हानी होऊ शकते. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे आपल्याला हिरवागार किल्ला करायचा आहे. म्हणून 18 तारखेला सकाळी 18 तारखेला कौन सा दिन है, इन्होंने ऑलरेडी एक मीटिंग लगाई है जिसमें मैं 3 अधिकारी जिले के डिज़ास्टर मैनेजमेंट, फॉरेस्ट मैनेजमेंट और फायर ब्रिगेड मैनेजमेंट, ये तीनों बोल के यहाँ आएंगे, मीटिंग ले लेंगे, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे. जो प्रोजेक्ट देखने के लिए मैं 19 तारीख आऊँगा. 19 तारीख आके यहाँ एक हॉल में मीटिंग ले लेंगे और ये पर्यावरण कैसा बढ़ेगा इसके ऊपर हम कोशिश करने वाले हैं. और जाते समय मैं इंस्ट्रक्शन दिया है ASI के स्टाफ को, कोई भी ऊपर जाएगा तो सिगारेट, बीड़ी, काड़ी का उनका जांच हो जाएगा और उसके सिवाय वो ऊपर नहीं जाएंगे. एक बताया. दूसरा जो है, जो घास आता है, घास का एवरी ईयर जो लिलाव होता है, लिलाव नहीं हो रहा है, हो गए तो भी कोई आ रहा नहीं है, तो हम उसके जो इच्छुक है ग्रास वाले, उनको ये काम कैसा देंगे ये करेंगे. तीसरा आपका सजेशन है कि एक लोकल कमेटी बनाओ, लेकिन किसके हाथ में नहीं है, मैं ये सर की पूछूंगा. और इतना ही मैं बताना चाहता हूँ आज के सबको. गोदावरी नदी पर सूखे पड़े जोगला देवी बंधारे के लिए जायकवाड़ी डैम के लेफ्ट कैनाल से पानी छोड़ा जाए, इस मुतालिबे पर किसानों ने लेफ्ट कैनाल के करंजाड़ा CR गेट पर एहतजाज किया. मुजाहिरीन का कहना है कि गोदावरी नदी पर जोगला देवी बंधारा तामीर किया गया है ताकि अतराफ के किसानों का पानी का मसला हल हो सके और वो इस पानी से अपने खेतों की भी सिंचाई कर सकें. मगर गर्मियों के मौसम के आगाज़ से ही ये बंधारा सूखने लगा था और वो लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसने लगे हैं. लिहाजा इस मसले को हल करने की गर्ज से जायकवाड़ी डैम के लेफ्ट कैनाल से बंधारे में पानी छोड़ा जाए. इस मतालिबे पर उन लोगों ने तालुका अंबड़ के मज़ाफ़ात करंजाड़ा में लेफ्ट कैनाल के CR गेट पर ज़ोरदार एहतजाज किया और हुकूमत व इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ जमकर नारे लगाए. जोगला देवी बंधाऱ्यात पाणी सुटलेच पाहिजे, सुटलेच पाहिजे, सुटलेच पाहिजे. जोगला देवी बंधाऱ्यात पाणी सुटलेच पाहिजे, सुटलेच पाहिजे. देत कसे नाहीत पाणी, घेतल्याशिवाय राहत नाही.
पाणी उशाला पाणी उशाला जोगलादी बंधाऱ्यात पाणी सुटलेच पाहिजे। रोशन गेट और इतराफ़ के साकिनान को तिब्बी सहूलतें फ़राहम करने की गर्ज से म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने इलाक़े में मेहरुन्निसा खानम ज़चगी खाना एंड हॉस्पिटल क़ायम कर रखा है, मगर दवाखाने के सामने मुकामी साकिनान अपनी 4 व्हीलर गाड़ियाँ पार्क करने लगे हैं, जिसकी वजह से वहाँ एम्बुलेंस खड़ी करने जगह नहीं है, मगर मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया उस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं है। नाजरीन, शहरियान को तिब्बी सहूलतें फराहम करवाने की गर्ज से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में म्यूनिसिपल अस्पताल और ज़चगी खाने खोल रखे हैं। रोशन गेट और अतराफ़ के साकिनान की सहूलत के लिए भी इलाक़े में एक ज़चगी खाना व अस्पताल क़ायम किया गया है, जहाँ रोज़ाना सैकड़ों मरीज़ इलाज की गर्ज से लाए जाते हैं। इसी तरह यौमिया 3 ta 4 हामिला ख़वातीन को ज़चगी के लिए यहाँ दाखिल किया जाता है। यहाँ मरीज़ों को लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस गाड़ी तो फराहम की गई है, जो दवाखाने के सामने खड़ी की जाती थी, मगर गुज़िश्ता कुछ दिनों से मकामी साकिनान दवाखाने के सामने अपनी 4 व्हीलर गाड़ियाँ पार्क करने लगे हैं, जिसके सबब न सिर्फ मरीज़ों को आने जाने में परेशानी का सामना है, बल्कि यहाँ दवाखाने के सामने एम्बुलेंस गाड़ी खड़ी करने के लिए भी जगह नहीं रहती, जिसके सबब दवाखाने से काफ़ी दूर रोशन गेट के अतराफ़ एम्बुलेंस गाड़ी खड़ी करना पड़ रही है, जिससे मरीज़ों को दिक्कतों का सामना है। लेकिन गैर क़ानूनी पार्किंग करने वालों को वहां रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, लिहाजा अवाम की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि इंतज़ामिया इस जानिब फ़ौरी तवज्जो दे। जालना रोड से एयरपोर्ट तक और शहर के दीगर इलाक़ों में रोड वाइंडिंग में हायल मकानात म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से हटाए जाते हैं, लिहाजा इन मुतासिरीन की बाज़ाबात कारी के लिए वज़ीर आज़म घरकुल स्कीम में उनके लिए 5% मकानात रिज़र्व किए जाएंगे। ये इत्तला म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दी। उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि जालना रोड पर झंडा चौक से एयरपोर्ट रास्ता कुशादगी के लिए डीपी रोड में हायल जो मकानात मुनहदिम किए गए या फिर दीगर डीपी रोड्स के मुतासरीन की बाज़ाबातकारी के लिए वज़ीर आज़म घरकुल स्कीम के तहत जो मकानात तामीर किए जा रहे हैं, उसमें से 5% मकानात उनके लिए रिज़र्व रखे जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हरसूल की गट नंबर 216 और 217 की ज़मीन पर PMY स्कीम के तहत मकानात तामीर किए जा रहे हैं, मगर कुछ लोगों ने यहाँ नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा था और गुज़िश्ता कई बरसों से वो लोग यहाँ आबाद थे, जिसकी वजह से मज़कूरा स्कीम के तहत मकानात की तामीर में रुकावट आ रही थी। लिहाजा म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने उन्हें वहाँ से हटा दिया और यहाँ मज़कूरा स्कीम के तहत तामीर किए जाने वाले मकानात में उन्हें भी मकान देकर उनकी बाज़ाबातकारी की जाएगी, मगर इंसानियत के नाते आइंदा 18 महीनों तक उन बेघर हुए पसमानदा तबक़ात के अफराद को 2000 रुपये माहाना मकान का किराया अदा करने के लिए दिए जाएंगे। उन्होंने सहाफ़ियों को ये भी बताया कि हरसूल के इन मुतासिरीन में से कुछ लोग कलेक्टर ऑफिस के सामने झोंपड़े डालकर बैठ गए हैं, तो कोई उन्हें ये समझाए कि वो लोग अपनी ज़िद छोड़कर कहीं और किराए का मकान हासिल करके PMY स्कीम के तहत मकानात तामीर किए जाने तक वहाँ मुंतकिल हो जाएँ और म्यूनिसिपल इंतज़ामिया से 18 महीनों तक 2000 रुपये माहाना माली इमदाद लेकर उससे किराया अदा करें। बर्ड्स जल संजीवनी प्रोग्राम के तहत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सेंट्रल प्राइमरी स्कूल नंबर 1 किराड़पुरे में गर्मियों के मौसम में परिंदों के लिए दाना पानी का इंतज़ाम करने से मुताल्लिक़ एक वर्कशॉप रखा गया और तलबा की रहनुमाई की गई। ये वर्कशॉप म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और लाइफ केयर एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से रखा गया, जहां सोसाइटी के सेक्रेटरी जयेश शिंदे ने तलबा को बताया कि सख्त गर्मी के सबब न सिर्फ इंसान परेशान हैं, बल्कि चरिंद परिंद भी हलकान होने लगे हैं और खालिक़े कायनात ने हम इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, इसलिए हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम इन बेज़बान चरिंद परिंद के लिए भी दाने पानी का इंतज़ाम करें। उन्होंने एसोसिएशन की जानिब से स्कूल के अहाते में परिंदों के पानी का नज़्म करने की गर्ज से मिट्टी के कटोरे और दीगर बर्तन डोनेट किए हैं, जबकि स्कूल की सदर मौलमा रईसा बेगम अयूब खान ने तलबा को बताया कि माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए शजरकारी क्यों ज़रूरी होती है और फिर इन दरख्तों पर परिंदों के लिए हम किस तरह से दाने पानी का इंतज़ाम कर सकते हैं। इस मौके पर अयूब खान, सिद्दीकी अरशद, यास्मीन कहकशां, अब्दुल रहीम, मोहम्मद अलीम, सरवत बेगम, शाहीन अंजुम, माविया तबस्सुम और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के सचिन यादव भी मौजूद थे। ऐसे मरते क्योंकि बारिश में उनके घर टूट जाते हैं, बराबर।
पूरे तूफान से उनके घर के बच्चे नीचे गिर जाते हैं, कोई उनको देखता नहीं। हमारे जैसे किसी को मालूम पड़ा तो हम उनको बचाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हम उसमें भी अगर बच गया तो बच गया, नहीं तो फिर नहीं बचता है। फिर इलेक्ट्रिकल जो तार रहती है वो बेचारे, उनको लगता है मैं ये टेरेस पे से टाकी दिख रही, मैं वहाँ पे बैठता हूँ तार पे, लेकिन वहाँ पे उनको शॉक लग जाता है, फिर उनकी मौत हो जाती है, बराबर। और अभी तो जहाँ लोग प्रॉपर्टी जिसकी ये झाड़ नहीं होना हमारे को, तो वो झाड़ के वजह से जहाँ वो ये सोचते नहीं इसमें कौवे ने घोंसला बनाया होगा या कोयल ने बनाई होगी या चिड़िया ने बनाया होगा, तो हम ये पूरे लोगों में क्योंकि वो आपके मकान के साथ वो झाड़ बढ़ता रहेगा और वहाँ पे परिंदे आके रहेंगे। क्योंकि आप एक घर जैसा आपका खुद का बनाने का सोचते हो तो परिंदों का भी सोचो, क्योंकि जो प्लॉट लेते लोग तो उसको जो झाड़ देते वो कट कर देते, उसमें भी उनकी पूरे झाड़ा टूटने की वजह से परिंदों को जगह से परिंदे उनको झाड़ काटने की वजह से उनके घर नष्ट हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। तो इसमें उनको जिंदा कैसे रखना है, तो आने वाली जनरेशन हो, आपको अगर ये तालीम मिल गई तो आप हजारों लोगों में बोलेंगे कि आप परिंदों को पानी पिलाओ, झाड़ मत काटो, एक झाड़ एक संकल्प। अपन ने पर्यावरण दिन में देखे कि नहीं, आपने एक झाड़ लगाने का कितना महत्व आपको बताए होंगे ना, टीचर ने बताया कि एक झाड़ कितना ऑक्सीजन देता है अपने को। तो जैसा झाड़ जरूरी है वैसे अपने को बर्ड्स एनिमल्स सब जरूरी है, और ये प्रकृति के लिए सुंदरता के लिए ये बहुत अहम है अपने लिए। बाजार सावंगी के जिला परिषद स्कूल में डॉक्टर सीवी रमन बाल वैज्ञानिक इम्तिहान के लिए सेंटर बनाया गया था, जहां सरकारी स्कूलों में ज़ेरे तालीम तलबा ने पुरअमन माहौल में पर्चे दिए। वाज़ेह रहे कि डॉक्टर सीवी रमन बाल वैज्ञानिक इम्तिहान के लिए पीएम श्री ज़िला परिषद स्कूल बाज़ार सावंगी में एग्ज़ाम सेंटर कायम किया गया था, जहां ज़िला परिषद स्कूल बाज़ार सावंगी के 35, प्राइमरी स्कूल आड़गांव के 15 और जैन इंटरनेशनल स्कूल मालीवाड़ा के एक तालिब इल्म ने इस तरह से 51 तलबा ने मज़कूरा इम्तिहान दिया। ये इम्तिहान 5वीं त 9वीं जमात में ज़ेर तालीम तलबा के लिए जन सेवा प्रतिष्ठान अहमदनगर की जानिब से लिया जाता है, और रियासत भर में इस इम्तिहान के लिए मुख्तलिफ मकामात पर 42 एग्ज़ामिनेशन सेंटर कायम किए जाते हैं। बाज़ार सावंगी में कायम करदा इम्तिहानी मरकज़ पर सेंटर चीफ की हैसियत से आरटी खंडागड़े की रहनुमाई में सुपरवाइज़र की हैसियत से रोहिणी निफाड़ ने काम देखा, जबकि इस इम्तिहान को कामयाब बनाने में डीआर पुरी, एसएम भंडारे और पीडी साबड़े ने भरपूर ताउन दिया। पीएम श्री जिल्हा परिषद प्रशाला सावंगी बाजार तालुका खुलताबाद जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर येथे आज दिनांक 13 एप्रिल 2025 रोजी जनसेवा प्रतिष्ठान संचलित डॉक्टर सीवी रमन बाल वैज्ञानिक परीक्षा 2025चं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। सध्या परीक्षा सुरू आहे। या परीक्षेसाठी आपल्या प्रशालेतील एकूण 35 विद्यार्थी, तसेच आडगाव खुर्द या शाळेतले 15 विद्यार्थी आणि जैन इंटरनॅशनल स्कूल छत्रपती संभाजीनगर येथील एक विद्यार्थी असे जवळपास 51 विद्यार्थ्यांनी परीक्षेस बसलेले आहेत। पाम संडे पर क्रिश्चियन समाज की जानिब से शहर में एक रैली निकाली गई और अवाम को अमन का पैगाम दिया गया। कहा जाता है कि सूली पर चढ़ाए जाने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कई अफराद ने देखा था, और तभी से पूरी दुनिया में पाम संडे मनाया जाने लगा है। इस मौके पर चर्चगाहों में खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया जाता है और रैलियां निकालकर दुनिया वालों को अमन का पैगाम दिया जाता है। आज पाम संडे होने के सबब नाजरीन चर्च से शहर में एक रैली निकाली गई, जिसमें क्रिश्चियन समाज के अफराद सफ़ेद लिबास ज़ेब-ए-तन किए, अपने हाथों में सफ़ेद झंडे उठाए, इस रैली में शामिल हुए और दुनिया वालों को अमन का पैगाम दिया। या ठिकाणी पाम संडे आहे आणि पाम संडे म्हणजेच जवळचा रविवार, आणि ह्या दिवशी 2025 वर्षापूर्वी 4 दिवस मेलेला लाजरस प्रभू येशू ख्रिस्ताने मरणातून जिवंत केला। ही एक जगातील ऐतिहासिक आणि सत्य घटना आहे। आणि 4 दिवस मेलेला लाजरस ज्यावेळेस येशूने जिवंत केला, त्यावेळेस लोकांनी प्रभू येशू ख्रिस्ताचं येरुशलेममध्ये स्वागत केलं। प्रभू येशू ख्रिस्त या ठिकाणी हे शिकवतो, जर तुम्ही विश्वास ठेवला, तुमच्या विश्वासाने तुमच्या जीवनामध्ये तुम्हाला सर्व काही शक्य आहे। प्रभू येशू ख्रिस्त असे म्हणाले, पुनरुत्थान आणि जीवन मीच आहे, माझ्याद्वारे आल्या वाचून कोणालाही स्वर्गाच्या राज्यात जाता येत नाही। प्रभू येशू ख्रिस्त या जगामध्ये पापी लोकांस तारावयास आले आहे,
ज्या पापामुळं मनुष्याच्या जीवनामध्ये दुःख आहे, पापामुळं मनुष्याच्या जीवनामध्ये शांती नाही, पापामुळं मनुष्याच्या जीवनामध्ये अपयश आहे. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त हे पाप घालवण्यासाठीच, शाप घालवण्यासाठी, मनुष्याला सर्व दरिद्री आणि सर्व शापातून बाहेर काढण्यासाठी, नरकाच्या शिक्षेतून वाचवण्यासाठी आणि मनुष्याला सार्वकालिक जीवन देण्यासाठी येशू जगत आला. नीमा के योम तासिस और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती की मुनासिबत से आराध्या नेत्रालय और भीम संघर्ष मित्र मंडल के इश्तिराक से अमराज चश्म की जांच के लिए एक कैंप मुनक्किद किया गया। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर माधवी शेलके की रहनुमाई में ये कैंप मुनक्किद किया गया, जहां कंप्यूटर के जरिए मोतियाबिंद, आँख के पर्दे के पिछले हिस्से की जांच के अलावा मुख्तलिफ अमराज चश्म से मुताल्लिक़ मरीज़ों की आँखों का तिब्बी मुआयना किया गया और इनकी इलाज से मुताल्लिक़ रहनुमाई की गई। इस मौके पर नीमा तंजीम के ओहदेदारान व वर्कर्स और डॉक्टर्स मौजूद थे, जिन्होंने इस कैंप को कामयाब बनाने में अहम रोल अदा किया। ज़िला जेल के कैदियों की तिब्बी जांच के लिए जेल इंतज़ामिया, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और ओम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के इश्तिराक से एक मेडिकल चेकअप कैंप मुनक्किद किया गया। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जालना की सेक्रेटरी प्रणीता भारसाकड़े वाघ के मुताबिक ज़िला जेल में बंद ज़ुमरा नंबर 1 के कैदियों के लिए ये तिब्बी जांच कैंप मुनक्किद किया गया था, जिसमें माहिरीन ने उनके शुगर बीपी की जांच की। इसी तरह उनका ईसीजी भी निकाला गया। इसके अलावा जिल्द और हड्डियों के अमराज की भी जांच की गई। इस मौके पर प्रणीता भारसाकड़े वाघ के अलावा डिस्ट्रिक्ट जेल के सुपरिंटेंडेंट काड़े, सरकारी वकील एडवोकेट बीवी एंगड़े, डॉक्टर रितेश अग्रवाल, डॉक्टर विपुल जैन, डॉक्टर विजय जाधव, धन स्नेह सूर्यवंशी, विजय लीनार, कैलाश पवार, एडवोकेट लक्ष्मण उड़ान, ईश्वर बिल्हारे, कार्तिक मदन और विशाल वाघमारे भी मौजूद थे। ताल्लुका वागरोड ज़िला जालना के खेतों में एक नामालूम शख्स ने आग लगा दी, जिसके सबब 1 एकड़ ज़मीन पर बोई गई जवार और दीगर ज़राती सामान जलकर खाक हो गया और 2 किसानों का तकरीबन 3 लाख रुपयों का नुकसान हुआ है। ज़राए के मुताबिक ज़िला जालना के तालुका वाघरूड के 60 साला किसान भगवान नामदेव खरात और 56 साला सरस्वती सोनाजी खलसे की गट नंबर 31, 37 और 38 में ज़रई ज़मीन है, जहां किसी नामालूम शख्स ने आग लगा दी, जिसमें गट नंबर 31 की 1 एकड़ ज़मीन पर लगाई गई जवार की फसल के अलावा 10 गुंठे शेडनेट जाली जलकर तबाह हो गई। इसी तरह 10 PUC पाइप, माइक्रो संच 600 मीटर रेन वाटर पाइप, 1000 लीटर गुंजाइश वाली खाली पानी की एक टांकी, स्प्रे पंप और दीगर सामान जलकर खाक हो गए। जबकि गट नंबर 37 और 38 में मौजूद लीमू और जाम के झाड़, शेडनेट की जाली में रखे RV सीड्स कंपनी के टमाटे के बीज और पौधों के जल जाने से किसानों का बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। इस वाक़े के बाद OBC रहनुमा नवनाथ वाघमारे ने मौके पर पहुंचकर हुए नुकसानात का जायज़ा लिया और मुतासरा किसानों को दिलासा दिया। खेती के पुराने झगड़े पर एक भतीजे ने अपने चचासाद भाई पर कातिलाना हमला करके उसे मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में पुलिस नाबालिग समेत 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर चुकी है। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक ताल्लुका अंबड़ के मज़ाफ़ात पांगर खेड़ा के साकिन दिगंबर श्रीरंग लांडे के साथ उनके भतीजे अमोल लांडे, सदाशिव विष्णु लांडे, उद्धव श्रीरंग लांडे और गोदावरी लांडे समेत एक नाबालिग लड़के ने मारपीट की, जिसमें वो शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए थे, जिनकी दौरान इलाज मौत हो गई। अंबड़ पुलिस स्टेशन में कत्ल का मामला दर्ज किया गया है और पुलिस एक नाबालिग लड़के समेत 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर चुकी है। कत्ल का ये मामला गजानन दिगंबर लांडे की शिकायत पर रजिस्टर किया गया है। अंबड़ पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। माझं नाव गजानन दिगंबर लांडे, राहणार पांगरखेडा, तालुका अंबड, जिल्हा जालना। तर येथे घरचे माणसं आमचे, माझे मिसेस पाण्याला गेलती, त्यावेळेस जो मुलगा आहे आरोपी, त्याने बैल तिच्या अंगावर घातले। ती म्हणली का घातले? तो म्हणला पहिल्याने तुला मारलं, तुझा माज नाही गेला का? मग ते सासऱ्याने म्हणले का केलं? तर ते घरी जाऊन त्यांनी 4-5 जणांनी चिमटा लोखंडा रॉड त्याने आणलं आणि तुला जीव मारतो याच्यानंतर ही धमकी दिली। काय नात आहे तुमचं? ते माझे पुतणे, माझे भाऊ आहे आणि ते चुलते अमोल उद्धव लांडे, गोदाबाई उद्धव लांडे, संदीप
विष्णू लांडे, उद्धव श्रीरंग लांडे सर यांना फाशी शिक्षा झाली पाहिजे. मयत हे तुमचे वडील होते का? हो, माझे वडील होते सर. कुठं घटना झाली? हो सर, आमच्या घरापाशी घरात येऊन मारलं त्यांनी. हो सर. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। एएमसी इंतजामिया की जानिब से खरीदे गए 29 मीटर ऊंचे एरियल प्लेटफॉर्म के अलावा 7 मेन रोड स्वाइपिंग मशीन की राब्ते वजीर संजय सिरसाट और अतुल सावे के हाथों की गई पूजा। मज़कूरा तकरीब में ताख़ीर से पहुंचने पर अतुल सावे ने संजय सिरसाट पर की तंज भरी तनकीद। तारीखी दौलताबाद किले के इतराफ और इहाते में आग लगने के वाक़यात में इजाफे से साबिक मरकजी वजीर ममलकत व राज्यसभा रुकन डॉक्टर भागवत कराड़ हुए सख्त नाराज। उन वाक़यात को टालने ठोस कार्रवाई की मुतल्लिका अफसरान को जायजा मीटिंग में दी हिदायत। डीपी रोड में हायल मकानात पर म्यूनसिपल इंतजामिया की जानिब से चलाए जाते हैं बुलडोजर्स। मज़कूरा मुतासिरीन की बाज़ाबात कारी के लिए वज़ीर आज़म घरकुल स्कीम के तहत तामीर किए जा रहे मकानात में से 5% कोटा मुतासिरीन के लिए मख्तस करने का इंतजामिया किया फैसला। हरसुल के गट नंबर 216 और 217 के मुतासिरीन को 18 माह तक मकान के लिए दिए जाएंगे 2000 रुपये माहाना माली इमदाद, कहा म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने। और बर्ड्स जल संजीवनी प्रोग्राम के तहत परिंदों के लिए दाना पानी फरहमी से मुतालिक सेंट्रल प्राइमरी स्कूल नंबर 1 किराड़पुरे में वर्कशॉप मुनक़िद। लाइफ केयर एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन के जिम्मेदारान और स्कूल की सदर मुदर्रिस ने तलबा की रहनुमाई। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं नासिर बिन खालिद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।